روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ مسیح یسوع کی سلامتی، مسیح یسوع کا دائمی اطمینان، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکتیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ، آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہیں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ خدا کے زندہ اور پاک کلام کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور پھر برکت پاتے ہیں، پھر اس میسج کو آپ لوگوں تک کنوے کرتے ہیں جو کہ خدا کی خدمت کا کام آپ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا اور خدا کا شکر گزار ہوں۔ عزیزوں، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، ہم کافی دنوں سے جسم کے اور روح کے کاموں یا پھلوں کے تعلق سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر واضح طور پر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ روح کے موافق پولس رسول کی خواہش ہے کہ جتنے بھی ایماندار راست باز لوگ ہیں، مسیح یسوع کو جنہوں نے قبول کیا ہے اور مسیح یسوع پر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ روح القدس کے موافق چلیں۔ لیکن آگے چل کے وہ تنبیہ کرتا ہے کہ جسم کی خواہشات کو پورا نہ کرو، کیونکہ جسم جو ہے یہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جیسے میں نے ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ جسم کی اور روح کی آپس میں کشمکش ہے، اور یہاں پر واضح الفاظ میں یہ بات ہمارے گوش گزار کی گئی ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میرے عزیزو، آج جسم کی ایک خواہش جو ہے، یا جسم کا جو کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، جو کہ روح القدس کے پھلوں میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں سے باہر نکالنا ہے تاکہ ہم روح القدس کے پھلوں سے بھر سکیں۔ آج جو لفظ ہے وہ ہے بدعتیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5 باب 19 آیت۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں اور بدعتیں۔ آج ہم بدعتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم لفظ بدعتیں یا بدعت یا بدعتی، ان الفاظ کا جب ہم بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں اس لفظ کا اردو لغت میں ذکر نہیں ملتا، اور جب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں یہ الفاظ جو ہیں یہ 4 مرتبہ ہمیں ملتے ہیں، اور اس کا یونانی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہائر ریسس، جس کا مطلب ہے کسی جماعت کو، کسی گروہ کو تقسیم کر دینے والی باتیں، یا دور حاضر میں کلیسیا یا کلیسیائی جماعت یا مسیحوں کے گروہ میں تقسیم کر دینے والی ایسی بدعتی باتیں، ایسی خود غرض باتیں،
ऐसी इंतहा पसंदीदा बातें जिन से कलीसिया की यगानियत जो है वो तबाह हो जाती है। मेरे अजीजों, ये बिदतें जो हैं या बिदत जो है ये एक ऐसी नासूर की मानंद है, ये आपके खानदान को भी तबाह कर देती है, खानदान के बाद फिर आपकी कलीसिया को तबाह कर देती है, आपके रिश्तेदारों को तबाह कर देती है, आपके अजीजो कारब को एक दूसरे से जुदा कर देती है। फिर इसी तरह इससे मुल्क भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए अगर आप रास्तबाज कहलाते हैं, आप मसीह यीशु के नाम लेवा हैं, तो फिर आपको अपनी जिंदगी में से इस बिदत जैसी लानत को बाहर निकालना है, ताकि रूल कुदस के फल लगें। और रूल कुदस के जब फल लगेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में मोहब्बत और प्यार आएगा। आए एक आयत मुबारका इसके तल्लक से देखते हैं। कदीम ज़माना में भी और इब्तदाई कलीसिया में भी ऐसे ग्रोह, ऐसे शख्स, ऐसे लोग पाए जाते रहे हैं जो कि बिदती कहलाते थे। इमाल की किताब और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि हमने इस शख्स को मफीद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज, कैसा फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरके का सर ग्रोह पाया है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग हैं जो कि कलीसियाओं को तबाह कर रहे हैं, चर्चेज को तबाह कर रहे हैं, ईमानदारों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ बिदतों की वजह से। हमें इनसे किनारा करना है। आए कलाम मुकद्दस इसके तल्लक से क्या कह फरमाता है हमें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, अपने हाथ में लें, अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल लें और इन आयात मुबारका को नोट करते जाएं। ज़रूर अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में शाम को बाइबल स्टडी किया करें और इन आयात मुबारका को ज़रूर पढ़ा करें। तीतस के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 10 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 1-2 बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जानकर के ऐसा शख्स बरगश्ता है। मेरे अजीजों, हर इंसान अगर उसकी जिंदगी में बिदती बातें हैं या बिदती अल्फाज हैं तो बाइबल बयान करती है कि उससे किनारा कर लें, उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वो कलाम से बरगश्ता है, वो खुदा के नाम से बरगश्ता है। वो नाम का तो क्रिश्चियन कहला सकता है, लेकिन मसीह यीशु का अक्स उसमें नजर नहीं आता, रूल कुदस के फल उसकी जिंदगी से नजर नहीं आते। इसी तरह एक और आयत मुबारका मैं आपके सामने तलावत करता हूं। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। मेरे अजीजों, यहां पर पौलुस रसूल हमें आगाह कर रहे हैं कि कदीम जमाना में भी बहुत सारी उम्मतों के अंदर झूठे नबी भी थे, और आज के दौर में भी कलीसियाओं में, मसीह लोगों में, मसीह बस्तियों में आज भी झूठे उस्ताद हैं जो पोशीदा तौर पर अंदर खाते जिसको कहते हैं, वो हलाक करने वाली बिदतें पैदा करते हैं। सो मेरे अजीजों, हमने इनसे दूर रहना है, ऐसे लोगों से। और अगर आपकी जिंदगी में खुद ये बिदतें तासीर पाई जाती है तो उसको यीशु के नाम से हमने बाहर निकालना है, ताकि खुदावंद के वसीला से रूल कुदस के फल आपकी ज़िंदगी में लगे। एक और आयत मुबारका मैं नोट करवा देता हूँ, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका
पहला 11 बाब है और उसकी 19 आयत है। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 11 बाब और उसकी 19 आयत मुबारका के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है। बिदतों का होना जरूर से मुराद ये है कि अबलीस आपको बिदतों की तरफ कायलो माइल करेगा। अगर तो आप कायलो माइल हो गए तो फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप ईमान पर कायम रहे तो इसी आयत का अगला हिस्सा में बताता है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। अबलीस तो हमें इस्तेमाल करने के लिए ऐसी ऐसी बिदती बातें हमारे जहनों में डालेगा, एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें डालेगा, लेकिन मेरे अजीजों हमने उसको मौका नहीं देना, क्योंकि बाइबल बयान करती है अबलीस को मौका ना दो, बल्कि ईमान में मजबूत हों। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रूह कुदस के फल लगें तो हमने जिस्म की ख्वाहिशात को एक तरफ करने की ज़रूरत है, जिसमें से एक ऐसा जिस्म का काम है जिसको बिदतें कहा जाता है। हमने इनको अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकालना है ताकि हम कलीसियाई तौर पर तरक्की कर सकें, रूहानी तौर पर तरक्की कर सकें और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच सकें, ईमान में मजबूत हो सकें और यीशु मसीह की गुआई के लिए तैयार हो सकें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। इस मैसेज को खुद सुने और इस मैसेज को और लोगों तक भी सेंड करें ताकि आप भी खुदावंद की खिदमत के हिस्सेदार बन सकें। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं क्योंकि तूने खुदावंद हमें ये वक्त बख्शा है कि हम तेरे कदमों में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इस वक्त खुदावंद जितने सामीन ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है, इन सब को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। इनके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके लिए से तो सलामती की दुआ मांगता हूँ, इनके लिए खुदावंद तेरे फजल को मांगता हूँ, ताकि खुदावंद ये तेरे फजल के वसीला से ईमान में मजबूत हों और तेरे कलाम को पढ़े, तेरे कलाम को सुने और खुदावंद तू इनको बरकतों से माला माल करे। और खुदावंद इस वक्त जितने लोगों ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके लिए से तो सलामती की दुआ मांगता हूँ। तेरे बेटे बेटियों के लिए कारोबार जो कर रहे हैं, उनके कारोबार को और बढ़ाना, जो खुदावंद जॉब और खुदावंद अपने बिजनेस में खुदावंद मगन है, उनको भी और ब्लेस करना, उनके कारोबार को और बढ़ाना। और जहाँ पे तेरे बेटे बेटियां काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर इनको सरफराज करना। जो बेटे बेटियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ब्लेस करना। जो खुदा ख़ानदान बे औलाद है, उनको सब औलाद करना। बड़े ईमान के साथ हमने मांगा, ईमान से पाया, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। आमीन, आमीन।